Corona time is like now we are living in a new world. Like during lockdown, we have learned how to go back in our previous times, the way we used to live in our previous times, spending time with the family, making homemade dishes. Wherever our mind was too much occupied and concerned about everything, but as we see positive in everything, so the entire corona time and the like corona time is still going on, but the period of lockdown was specifically, it was like meant for only for the family, although quite depressing sometimes, working from home as well as work from home, like it, all things were combined together, but still it was a good time with family. देखिए, मेरा तो यही विचार है कि दिल्ली को जब लॉकडाउन खोला गया तो दिल्ली को नहीं खोलना चाहिए था, क्योंकि ये इंटरकनेक्टिंग है हर जगह से, और जब इंटरकनेक्टिंग है तो ऑब्वियस सी बात है कि हर जगह के लोग कनेक्ट होंगे, तो उसी तरह से स्प्रेडिंग जो चेन है वो अगेन स्टार्ट हो जाएगी, जो रोकने की कोशिश थी। तो मेरे ख्याल से इसको लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए था इन प्लेस ऑफ अदर, जिससे कि अदर भी सेफ रहते जोन और दिल्ली भी। So due to this lockdown, our normal life is getting affected by more. It's like coming to office and going back and having food and whatever it is for necessary things. It is very difficult for us, and so it's like passing every day. It's like a very much struggle to pass the every day, like whether we have passed the corona positive person or not. And moreover, the thing is like we are not getting our essential things like rice or whatever it is, very difficult to get all those things. And even prices, everything is, they've increased. And this situation also we are coming and working, and that's that we have to do actually, because we are working in a service sector, so definitely we have to do that. We will do that also, but there are a lot of things that is it is affecting our personal life. But yeah, After this lockdown is over, which was very much required also because of too many people going jobless, and no one can strive for longer without any work. Everyone has to go out and earn for their families, for themselves. So for that, unlock has to be there, and this unlock is again given us the responsibility that we have to earn as well as we have to be safe. So it is like this corona time is making us learn more responsibilities, whether we are in lock period or we are in the unlock period. And as usual, we are praying daily that this thing gets over as soon as possible, so that we all are free. Right now our minds are occupied whole day with like safety issues, social distancing, using sanitizers, hands wash, which we had never even thought of, that we will use these sanitizers, masks, whole day they are with us, like they are the the companions more than to the family, because for being with the family we need these things on daily basis now. So let's just pray to God that this thing gets over, this corona period gets over soon, and it never comes back in our life. Even if we need to spend time with our family, it should come back in some, like this time should come back in some other positive way, but not in this way, the way we are losing so many near and dear ones. It should not come in this way. Although we have seen the nature healing in this period, we had seen all those things which we sometimes we used to think that okay, काश ऐसा हो कि मैं घर बैठूं आराम से एंड मेरे को घर बैठे सैलरी मिल जाए, काश मेरे को स्काई क्लियर दिख जाए विद द स्टार्स, सो वी कुड, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली इस टाइम में। लेकिन ये चीज़ें हमको ये सिखा के जाती हैं कि अगर हम चाहें तो हम इन सब चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं, जिस तरह से हमने 3-4 महीने में किया। बट स्टिल फॉर दैट वी शुड नॉट हैव दिस कोरोना रीज़न।
केसेस बढ़ नहीं रहे, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि मेरी खुद की फैमिली में मेरी सिस्टर की फादर इन लोगों को कोरोना हुआ है। वो अभी से 2 से 3 हॉस्पिटल बदल चुके हैं और डॉक्टर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हॉस्पिटल को इनफेक्ट कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हॉस्पिटल ने ये कहा है अगर हॉस्पिटल बदलते अगर बंदा एक्सपायर हो जाए तो कोई भी उन्हें देखने के लिए नहीं है। हॉस्पिटल की हालत इतनी ख़राब है कि कोरोना के पेशेंट इतने बढ़ गए कि एक कमरे में उनकी लाशें भर गई हैं, वो बेंच पे नहीं, ऐसे ज़मीन पे फेंकी जा रही है। और मतलब उनकी जो फैमिलीज़ है उन्हें कहा जा रहा है कि कोरोना का टेस्ट होगा, अगर ये लोग पॉजिटिव होंगे तो आपको लाश नहीं मिलेगी, डेड बॉडीज़ नहीं मिलेगी, और अगर ये नेगेटिव निकले उसके बाद ही आपको डेड बॉडीज़ मिलेंगी। हाँ, कोरोना बहुत ज़्यादा डेंजर है अभी दिल्ली में एज ऑफ नाउ, तो लॉकडाउन को बढ़ना चाहिए। जैसे कि पहले कम्प्लीटली लॉकडाउन था वैसा ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा, जैसे कि मेट्रो नहीं खुली, ऑफिसेज खुल गए 100%, तो हम कहाँ से ट्रैवल करें? हम कितने पैसे देंगे अपने कैब में? कितने पैसे? इतनी तो सैलरी नहीं है जितने कि हम पैसे दे रहे हैं कैब में। प्रॉब्लम बहुत हो रही है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का इशू हो रहा है बहुत ज़्यादा। ऑफिसेज खुल गए हैं 100%, बट ट्रांसपोर्ट कुछ मिलता नहीं है आने जाने के लिए, और ना ही कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसलिए हमें घर से ही कुछ अरेंज करना पड़ता है। और लड़कियों के साथ तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि ना ही उनको कोई व्हीकल चलाना आता बहुत सारी लड़कियों को, और ना ही गाड़ी या फिर स्कूटी वगैरह कुछ ड्राइव करना आता। तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और उसकी वजह से घर वालों को भी प्रॉब्लम हो रही है। उनको बार बार ही हम लोगों को लेकर आना पड़ता है ऑफिस, फिर घर लेकर जाना पड़ता है। उनको हमारे टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, जिस टाइम से हमारा ऑफिस कंप्लीट हो रहा है तो उसी टाइम से हमें लेकर आना पड़ता है। मेरा इच्छा बहुत सारी है वर्ल्ड टूर करने की, जो सबसे बैन हो गया है अभी, कि हम कहीं घूम नहीं सकते या फिर कहीं जा नहीं सकते। सबसे पहले हम वही करेंगे, शायद ज़्यादातर लोग यही करेंगे, घूमने जाने की कोशिश कि हाँ भाई अब कहीं कोरोना नहीं है वर्ल्ड में तो सब लोग टूर पे जाएं या फिर कहीं अपनी फैमिली के साथ कहीं जाएं। आफ्टर लॉकडाउन ये है कि ट्रैवलिंग में इशू है, कहीं ना कहीं बॉर्डर सील के काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहे हैं। और नॉर्मली जैसे फॉर एग्जांपल मैं नोएडा रहता हूँ, तो मुझे कई बार बॉर्डर सील की वजह से वहाँ पे रोका गया, रिस्ट्रिक्ट किया गया। फिर मैंने अपना आई कार्ड दिखाया, परमिशन से आया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट था नहीं। अब मेरे जैसे बंदा, मेरे पे चलो अपना प्राइवेट व्हीकल है तो इट्स बेटर टू मी कि मैं बाइक से आ जाता हूँ, लेकिन जिसके पास नहीं है या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही डिपेंड है ऑफिस के लिए, अदर वर्क्स के लिए, तो उसके लिए तो काफ़ी टफ है ना कहीं ना कहीं। और बॉर्डर सील की वजह से कई लोग जो दिल्ली से नोएडा जॉब करते हैं, नोएडा से दिल्ली करते हैं, कोई हरियाणा करता है, कोई गुड़गांव करता है, तो वो प्रॉब्लम्स भी बहुत लोगों ने फेस करी है। और गवर्नमेंट ने सबको ई पासेस तो दिए नहीं थे, अलाउ नहीं किए थे, और ऑफिशियली भी ऑफिस से आप लोगों को ऐसा कुछ पासेस मिले नहीं गए। तो वही थी जिसकी किस्मत थी, पुलिस वाले ने जाने दिया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो हुई हैं, फेस की हैं। कुल मिला के यही है, देखो अनलॉक फेस में गवर्नमेंट भी आपको कितना रिस्ट्रिक्ट करे। सीधी सी बात है, गवर्नमेंट के पास आज की डेट में अर्थव्यवस्था चलाने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट पे टैक्स नहीं आ रहा। टैक्स क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, इंपोर्ट नहीं हो रहा, मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं रही है। गवर्नमेंट कहाँ से पे करेगी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरीज वगैरह? ठीक है, देखो 2 महीने गवर्नमेंट ने आपको घर में बैठ के ये समझाया है कि आपको जीना कैसे आगे चल करके। सीधी सी बात है, उसने बोला है अब कोई, अब बच्चे नहीं हैं यार, लोग इतनी समझ सबको होनी चाहिए। मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। ऑब्वियस सी बात है, अभी 2-3 चीज़ रूल्स फॉलो करोगे तो मुझे नहीं लगता आपको कोरोना होगा। लेकिन लोग क्या है, इसे बहुत लाइटली ले रहे हैं, विदाउट मास्क घूम रहे हैं, 4-4 5-5 ऐसी अय्याशी करते फिर रहे हैं, रूल्स नहीं मान रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मानते हैं कुछ भी। तो ऑब्वियस सी बात है ये फैलेगा ही फैलेगा। और गवर्नमेंट ने 2 महीने घर बैठ के आपको समझा दिया है कि आपको जीना कैसे आगे जा करके। उसके बावजूद भी अगर आप नहीं समझते तो भुगतोगे। आज की डेट में, पहले भी मेंटली हेल्थ में आपको बताता हूँ, मेंटली क्या है, लोगों को आज के टाइम पे अगर सर्दी, खांसी, जुकाम, नॉर्मल भी वायरल भी होता है ना, तो उसको ये लगता है लाइक कि मुझे कोरोना हो गया, क्योंकि ये फेस में चल रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं, जब गर्मियां सर्दियां मौसम इस तरह के आते थे, लोगों को तब भी जुकाम होता था, तब भी खांसी होती थी, तब भी फीवर आता था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो है कि वो मेंटली बंदा प्रिपेयर नहीं होगी। उसने कोरोना आज के डेट में कहाँ नहीं है, आप मुझे बताओ। सोशल मीडिया आप चेक करो, कोरोना के अलावा कुछ नहीं है। न्यूज़ आप देखो, कोरोना के अलावा कुछ नहीं है। 4 लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं सिर्फ कोरोना के बारे में। आपके फ़ोन्स में कोई भी आप साइट चलाते हो, सिर्फ कोरोना। तो माइंड में आपके ऐसा घुसेड़ दिया है कोरोना, सोशल मीडिया के जरिए, न्यूज़ के जरिए, नेताओं के जरिए, पॉलिटिशियन जो भी आगे टीवी में बोलते हैं, हर जगह लोगों के माइंड में इतना कोरोना बैठ चुका है आज की डेट में कि उनको अगर फ्लू भी होता है तो दे विल रियलाइज दैट कि मुझे कोरोना हो गया, लाइक मेरे सिम्टम्स हैं कहीं ना कहीं। और मैंने इनफैक्ट एक एम्स से, आई थिंक कोई बड़े डॉक्टर हैं, उनका मैंने इंटरव्यू देखा था। उन्होंने ये बात बोली थी कि नॉर्मली क्या वायरल पहले नहीं होते थे लोगों को, इसके सिम्टम्स सेम हैं।
क्या लोगों को वायरल पहले नहीं हुए, खांसी जुकाम नहीं हुआ, लेकिन वो है कि माइंड सेट हो रखा है आज की डेट में कि कोरोना चल रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे मैं कहीं से इन्फेक्ट तो नहीं हो गया हूँ। और ऑब्वियस सी बात है यार, जहाँ पर एक इन्फेक्ट होगा, ठीक है, उसको पता नहीं है, वो 10 से मिलेगा, जा करके 10 को कर देगा। तो वो भी है कि मैं अगर मुझे हो गया तो मैं चेक तो करा ही लूँ एटलीस्ट, कहीं ये फ्लू ही है या फिर नॉर्मल कहीं कोरोना हो गया हो। कहीं ना कहीं डर हाँ, डर है माइंड के अंदर, बहुत ज़्यादा डर बैठ गया लोगों के अंदर। तो मेंटली फेस लोगों का इस टाइम बहुत डाउन जा रहा है, मतलब लाइक लोगों को ये लग रहा है कि सेफ फील नहीं कर रही है पब्लिक आज की डेट में, इंडिया ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में। सी मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए एक ही तरीका है, लॉट्स ऑफ मेडिटेशन एंड गुड एंड पॉजिटिव थॉट्स. We have to remember that nothing remains forever. Everything has a solution and everything has its limited time. Even if the problems come, they end at one day. So we have to be very positive. Keep your mind nourished with good thoughts, do good meditation, do some physical exercises, yoga. All these things are required for mental health as well as physical health.